Hello students, how are you all? I hope all of you are fine and preparing well. We have finished our first unit, read 1 and 2 with poem. Today we are going to start our second unit. The name of the unit is The Sound of Music. Let's begin it. Before we read the lesson, let's get some overview of it. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. It is our part 1. Evelyn Glennie listens to the sound without hearing it. ये एवेलिन ग्लीनी है, वो मेन कैरेक्टर है. She listens to sound without hearing it. God may have taken her hearing, but He has given her something extraordinary. What we hear, she feels. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music beautifully. हमारी जो मेन कैरेक्टर है एवेलिन ग्लीनी, गॉड हैज टेकन द एबिलिटी टू हियर फ्रॉम हर, बट शी इज ब्लेस्ड विथ सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी गिफ्ट बाय गॉड. एंड व्हाट इज इट? व्हाट वी हियर, हम लोग जो सुनते हैं, शी फील्स, वो फील करती है. हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सुनते हैं, लेकिन हमारी एवेलिन ग्लीन है, वो फील करती है मोर डीपली देन एनी ऑफ अस. और उसका ये फीलिंग होता है, वो हमसे ज़्यादा डीप होता है. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक ब्यूटिफुली. एंड इसीलिए दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक ब्यूटिफुली. एवेलिन ग्लीन अच्छे से म्यूज़िक को एक्सप्रेस कर सकती है. Read the following account of a person who fought against physical disability and made her life a success story. आइए हम उस लड़की की बात करते हैं जिसने अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी को एक सक्सेस स्टोरी में कन्वर्ट कर दिया. कैसे किया उसने? आइए देखते हैं. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. जब हमारी ये स्टोरी शुरू होती है तो ये एक ट्रेन का प्लेटफॉर्म है और ये रश आवर है, पिकअप टाइम है, बड़ा क्राउड रहता है इस समय रेलवे प्लेटफॉर्म पर. जोसल का मतलब साइड में आपको दिया गया है पुश रफली. लोग एक दूसरे को रफली पुश करते हैं. इतना बड़ा क्राउड रेलवे प्लेटफॉर्म पर था. अ स्लाइट गर्ल, स्लाइट गर्ल इट मीन्स अ गर्ल हु इज स्मॉल एंड थीन. एक छोटी सी पतली वाली गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. The girl was थीन एंड स्मॉल. ये थीन एंड स्मॉल के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है? स्लाइट गर्ल. ये याद रखना है. लुकिंग यंगर देन हर 17 years. वो 17 years की तो थी, लेकिन वो लड़की उससे भी यंग लग रही थी. एंड हाउ वॉज शी? शी वॉज नर्वस बट येट एक्साइटेड. टू ऑपोजिट फीलिंग्स यहाँ पे आपको दिखाई दी गई है. शी वॉज नर्वस. On the other side, she was excited too, as she felt the vibrations of approaching train. ट्रेन आ रही है, उसका वाइब्रेशन उसने फील किया, इसीलिए वो एक्साइटेड भी थी. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from Scottish farm. She was going to join an academy in London. And our girl belonged to Scotland.
स्कॉटलैंड ये छोटी सी जगह है लंदन के कंपैरिजन में. She was coming from a Scottish farm, and that's why she was that much excited because she was going to join prestigious Royal Academy of Music in London. Daunting का मतलब होता है frightening, थोड़ा सा fearful, थोड़ा सा डर लगता है. Why? Because she was coming from Scotland, Scottish farm, and she was going to join Royal Academy of Music in London. She didn't see the train, but she felt the vibration of the train. And why was she excited? Because she could feel the vibration of the train. Which institute was she going to join? She was going to join the prestigious Royal Academy of Music. And where was the academy? The academy was in London. It was daunting enough for any teenager fresh from Scottish farm. स्कॉटलैंड के छोटे से फार्म में से आने वाली कोई भी लड़की के लिए ये डाउंटिंग एक्सपीरियंस. डाउंटिंग का मतलब क्या होता है? अभी मैंने बोला फ्राइटनिंग. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट. शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ. Aspiring musician, a person who wants to be a musician. Aspiring musician, it means musician बनना चाहती थी वो लड़की. वो इससे भी बड़ी एक चैलेंज वो फेस कर रही थी. कौन सी चैलेंज थी वो? She was profoundly deaf. वो कुछ भी सुन नहीं सकती थी. She was profoundly deaf. डेफ का मतलब क्या है? अ पर्सन हु कैन नॉट हियर एनीथिंग, जो कुछ भी सुन नहीं सकता. इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम? डेफ. एवेलिन ग्लीनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. ग्रेजुअल इट मीन्स स्लोली स्लोली, ऑल ऑफ अ सडन नहीं हुआ था. लॉस ऑफ हियरिंग इट मीन्स सुनने की जो उसकी शक्ति कम हो रही थी वो ऑल ऑफ अ सडन नहीं हुआ था. इट वॉज ग्रेजुअल. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play piano. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard. The loss of hearing process was gradual. Gradual it means slow. All of a sudden नहीं हुआ था. कैसे उसकी मम्मा को पता चला कि वो सुन नहीं सकती? Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. एक बार ऐसा हुआ कि जस्ट छोटी सी 8-year-old Evelyn वो पियानो बजाना चाहती थी. They called her name and she didn't move. उन लोगों ने उसका नाम बोला. जो पियानो बजाने के लिए देते थे उसने नाम बोला एवेलिन का, लेकिन एवेलिन ने सुना नहीं और शी डिडंट मूव. आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडंट हर्ड. उसकी माँ बोल रही है, उसका नाम है इजाबेल ग्लेनी. इजाबेल ग्लेनी ने बोला कि उसका नाम लिया और उसने सुना नहीं, क्योंकि वो मूव नहीं किया क्योंकि उसने सुना नहीं. तब उसे पता चला कि शी हैडंट हर्ड. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. Evelyn was an intelligent girl. She could manage to conceal. To conceal it means to छुपा. इसका मतलब होता है छुपाना. अपने friends and teachers से she could manage कि वो बहरी है, कुछ सुन नहीं सकती. ये बात अपने टीचर्स से और फ्रेंड्स से छुपाने में कुछ हद तक in the beginning she was successful. But by the time she was 11, her marks had deteriorated her and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. But by the time she was 11, जब वो 11 years old हुई तब ये उसका लॉस ऑफ हियरिंग का मार्क है. हेड ये कौन सा टेंस आ गया? परफेक्ट पास्ट टेंस. हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड. इसका मतलब ये ज़्यादा बढ़ गया. एंड हर हेडमिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर
to a specialist. It was then discovered that her hearing was severely impaired. Impaired का मतलब क्या होता है? वीक कर दिया, वीक हो गया है, कम हो गया है, वो उसकी ताकत कम हो गई है. इसका मतलब ये हुआ कि उसकी सुनने की शक्ति बहुत कम हो गई और एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, जो सुनने के लिए जो नर्व्स होती है, हमारी नस नाड़ियाँ होती है, वो सुनने के लिए है, उसमें कुछ डैमेज आ गया था, इसीलिए वो सुन नहीं सकती थी. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for deaf. उसके पेरेंट्स को ये एडवाइस मिली कि उसको हियरिंग एड्स उसको पहनाया जाए और डेफ लोगों की जो स्कूल होती है, जो सुन नहीं सकते ऐसे बच्चों की जो स्कूल होती है, उसको वहाँ पे भेज दिया जाए. बट एवेलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक. बट एवेलिन वॉज नॉट अ गर्ल who could easily give up. She was determined, she was firm that she was going to lead a normal life and pursue her interest in music. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. Xylophone is an instrument. आप उसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट कैसा लगता है. It is a musical instrument with a row of wooden bars of different lengths. अलग अलग लेंथ्स के वुड के जो बार हैं उसको वो रो कर देते हैं और उसको बजाते हैं. इसे क्या बोलते हैं? xylophone. So one day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. And on that day she decided that she also wanted to play the same instrument. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potentiality. परक्यूशनिस्ट इसका मतलब क्या होता है? परक्यूशन हम लोग सीख गए वो 8th में. परक्यूशनिस्ट इट मीन्स अ पर्सन हु प्लेज द ड्रम एंड तबला एंड वेरियस टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. उसे क्या हम बोलते हैं? परक्यूशनिस्ट. बट परक्यूशनिस्ट मिस्टर रॉन फॉर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल. उसके अंदर जो पोटेंशियलिटी थी वो बहुत बड़े परक्यूशनिस्ट मिस्टर रॉन फॉर्ब्स थे, उसके अंदर की रहली ताकत को पहचाना. He began by tuning 2 large drums to different notes. और उसने क्या किया? 2 large drums थे, उसको different note, different धुन पे ट्यून किया. Don't listen through your ears, he would say. आप अपनी कान से मत सुनो. Try to sense it some other way. उसको कोई और तरीके से सुनने की कोशिश करो. Says Evelyn. Suddenly I realized, अब एवेलिन बोलती है, सडनली मुझे ये रियलाइज हुआ, I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. उसने ऐसा फील किया कि मैं वेस्ट या कमर का बीच का भाग होता है, बॉडी का बीच का भाग होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? वेस्ट बोलते हैं. वो बोली मैं हायर ड्रम को वेस्ट के ऊपर के भाग से फील कर सकती हूँ. बॉडी का जो बीच वाला हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं हम? वेस्ट बोलते हैं. और लोअर ट्यून्स जो नीची ट्यून्स होती है उसको मैं वेस्ट का डाउन पार्ट होता है उसको उसकी हेल्प से सुन सकती हूँ. Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. एवेलिन डिस्कवर्ड उसने कंटिन्यू किया उसका एक्सपीरियंस, रिपीट किया और एवेलिन ने डिस्कवर किया कि शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी. आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है. देखो एवेलिन ने क्या सीख लिया. आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी. मेरा माइंड और मेरा बॉडी साउंड्स और वाइब्रेशंस की तरफ ओपन कैसे किया जाए वो मैंने सीख लिया. हम लोग क्या करते हैं? हम लोग म्यूज़िक कान से सुनते हैं और फिर ठीक है, अच्छा है.
हम उसे महसूस नहीं करते, हम उसे फील नहीं करते। लेकिन ये एवेलिन गॉड ने उसको सुनने की शक्ति उसकी छीन ली, लेकिन वो फील करने की जबरदस्त ताकत एवेलिन को दे दी। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। पहले तो उसने सीख लिया, क्या सीख लिया आप अच्छे से याद कर लो। देखो, भगवान ने हमें सुनने की शक्ति दी है, देखने की शक्ति दी है, बोलने की शक्ति दी है, अच्छे हाथ पैर है, फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन देखो, ये हमारी एवेलिन है, उसने क्या सीख लिया? आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम द पॉइंट्स ऑनवर्ड्स, और उसके बाद उसने कभी पीछे नहीं देखा। शी टॉर्ड टू यूनाइटेड किंगडम विथ अ यूथ ऑर्केस्ट्रा। यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ उसने यूनाइटेड किंगडम की टूर की। एंड बाय द टाइम शी वाज 16 शी हैज डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। और जब वो 16 साल की हुई, व्हाट हैड शी डिसाइडेड? शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। शी ऑडिशन फॉर रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। ऑडिशन, अब तो आप ये सब लाइव टीवी प्रोग्राम देखते हो इसलिए पता है ना, उसका भी ऑडिशन राउंड होता है। ये शॉर्ट परफॉर्मेंस होता है जिससे डायरेक्टर को ये पता चल जाएगा कि ये आगे जाएगी या नहीं जाएगी। उसे क्या बोलते हैं? ऑडिशन बोलते हैं। She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of academy। और इतनी बड़ी लंदन की रॉयल एकेडमी, उसकी हिस्ट्री में इतना हाईएस्ट मार्क्स किसी को नहीं मिले थे जितना हाईएस्ट मार्क्स हमारी एवेलिन को मिला था। ये बहुत ही अच्छी बात है। आप जहाँ भी बैठे आपको क्लैपिंग करनी चाहिए इस ब्रेव गर्ल के लिए। She gradually moved from orchestral work to solo performances। पहले तो वो ऑर्केस्ट्रा सब लोग बजाते हैं, उसको पता है ना आपको ऑर्केस्ट्रा क्या होता है। वो सब लोग अलग अलग इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ऑर्केस्ट्रा। लेकिन उसने सोलो परफॉर्मेंसेस भी किए। सोलो परफॉर्मेंस मीन्स अपना अकेले का, अपना एक का ही अपना पर्सनल परफॉर्मेंसेस भी उसने किया। At the end of her 3 years course, she had captured most of the top awards। उसके अचीवमेंट्स के बारे में आपको एग्जाम में अगर पूछा जाए तो भी आपको लिखना है कि at the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards। And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement। If you work hard and know where you are going, you will get there। कोई भी गोल को अचीव कैसे किया जाता है? स्टूडेंट्स, ये एवेलिन का सेंटेंस आपको याद रखना है। क्या बोलती है वो? इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, आपका गोल कहाँ है और आप कहाँ जा रहे हो, इस दोनों बात का आपको अगर पता है, यू विल गेट देयर। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप। और इसी ही सिस्टम से वो आगे चली और वो टॉप पे गई। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट, सिख का पास्ट पार्टिसिपल सॉट, सबसे ज़्यादा पॉपुलर, इसके लिए फ्रेज है वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट। सिख यानी ढूंढना, उसका पास्ट पार्टिसिपल दिया है। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट after multi-percussionist with mastery of some thousands of instrument and hectic international schedule। उसका शेड्यूल भी हेक्टिक था, वो इंटरनेशनल टूर्स कर रही थी, इंटरनेशनल प्रोग्राम्स कर रही थी, और she had become the world's most sought artist। सो इसके साथ ही आज का लेक्चर यहाँ पे हम फिनिश करते हैं। इसका सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट ट्यूसडे को करेंगे। 1-2 बार ये वीडियो को देखना, सुनना और समझने की कोशिश करना। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हेल्प योर पेरेंट्स, डोंट वेस्ट योर टाइम, एंड रियली आई मिस यू ऑल। बाय बाय।